جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری ٹیم کی جانب سے وعلیکم السلام. یقیناً کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی بلاگ سے ہمیشہ کچھ کاغذات کی طرف سے یہاں سب جگہ سب الحمدللہ. شکر اللہ تعالیٰ کا. یار میں نے آپ سے سرسری ذکر کیا تھا کہ بچی ہے وہ اپنی نیگیٹیوٹی کھا رہی ہے اور وہ کوئی 2 3 4 5 سال کی بچی نہیں ہے, 10 سال کی ہونے والی ہے. وریشا نام ہے, وریشا ایک کراچی اور جس کو ہم اسٹول کہتے ہیں وہ کھاتی ہے. عجیب معاملات ہیں. ڈاکٹر ہومیوپیتھک سب سے علاج کرا لیا. زیادہ تر جو صاحب علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے آنے میں دیر کر دی, کہتے ہیں بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں, گلے میں تعویذ ہے, کوشش ہے. اب میں نے ان سے پوچھا بھائی کیسے, کس طرح, کیوں؟ کہتی ہے یہ بچپن میں ٹھیک تھی, سب صحیح تھا, بس یہ بتا نہیں پاتی تھی. بچے بتاتے ہیں نا کہ بھائی واش روم جانا ہے, پشی آئی ہے, پوٹی آئی ہے, بچے بتا دیتے تو یہ بتا نہیں پاتی تھی. تھوڑا سا ان میں ان کی والدہ جو ہیں ان کو بھی کہوں گا وہ نہیں بتا پاتی تھی, آپ کو دیکھتی تھی نا صحیح. وہ تم خود مائیں بتا دیتی ہیں. اب ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بتاتی نہیں ہے, خود ہواتی ہوگی, واش روم تو شرم سے نہیں بتاتی ہوگی, ہو جاتی ہوگی. اب سر نوبت یہ ہے کہ کہیں کسی کے سامنے اس قدر چیزیں عجیب سی ہیں کہ یہ رک نہیں پاتی. یہاں تک سہیل بھائی مخصوص دن ایک عمر میں آتے ہیں, چلو کم سے کم عمر بھی 12-13 سال ہوگی, ایسا ہی ہے. ان کی 9 سال میں آ گئے. 9 سال میں بچپن ہی کیوں پڑے یار. 9 سال 10 مہینے اس میں جی ان کے مخصوص دن کی جو ہے نا وہ جوانی آ گئی. حالانکہ میرے خیال سے اگر 2022 کو بھی نوٹ کریں ہم تو 12-13 سال تو ہے ہی ہے کم از کم, یا زیادہ سے زیادہ. بھائی جان پہلے کے دور میں تھوڑا یہ پیریڈ زیادہ تھا, پہلے کے دور میں کچھ زیادہ تھا, 16-17 کی ایج کا. پھر یہ جیسے جیسے ٹائمنگ بڑھتی جا رہی ہے اور سب کچھ چینج ہو رہا ہے. 12-13 کے اندر سنا ہے کہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن 9 سال یا 10 سال کی ایج کا میرے نظر میں فرسٹ ٹائم ہے سر. اب ایک بات آپ کو اور بتاؤں, یہ واحد صرف وریشا کا کیس نہیں ہے. اچھا. میرے پاس پچھلے 2 مہینوں میں ایسے 5 کیس آ چکے ہیں. اللہ. بچے بچیاں عجیب وجہوں سے, مطلب یار اپنی نیگیٹیوٹی کون کھاتا ہے, کیسے کھا لیتا ہے؟ جانور تک نہیں کھاتے یار. سوائے ایک جانور کی جس کا نام بھی نہیں لیتے ہم. صحیح. صرف ایک واحد وہ جانور ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے, اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے. صرف وہ کھاتا ہے اپنی نیگیٹیوٹی, اسی لیے اس کو اتنا. اب چھوٹے بچے, معصوم بچے, آپ سوچیں مہمان بیٹھے ہیں کہ دعوت میں ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, یا اپنے کپڑے اتار لینا. گھر میں کوئی نیک کام ہو رہا ہے, آپ وہاں پہ کوئی عادت پھیلانا شروع ہو گئے. مطلب نیگیٹیوٹی. اب جیسے میں نے 5-6 بچوں کا ذکر کیا آپ سے, ان میں ایک بچی ہماری گلشن حدیث صاحب کی, یہ بھی کراچی کی ہے. یہ بھی کراچی. بھائی کیا ہوا, ہم دیکھتے ہیں اسٹیل ٹاؤن کے سامنے جو سوسائٹی ہے, بڑے درخت ہیں پرانے پیپل کے برگد, ہم لوگ گئے ہیں. اب وہ کوارٹرز ہیں وہاں پہ, کوارٹرز. ہوا کیا, وہ واش روم ایک ہوتا ہے کوارٹرز میں, تو گھر والوں میں ذرا مہمان تھے, لوگ زیادہ تھے, واش روم فل تھا, بچی ذرا ایمرجنسی تھی, انہوں نے کہا باہر چلی جاؤ باہر. اس نے کہ درخت پہ جا کے اپنی حاجت پوری کی ہے ایمرجنسی میں. اس کے بعد سے اس کے ساتھ مسئلہ شروع ہو. ایک بچہ ہے بالکل ٹھیک,
बिल्कुल सही यार, वो ये अपनी नेगेटिविटी खा रहे हैं। वो कहाँ गए? वो पंजाब। अच्छा, चलो ये तो समझ में आती है। जो दूसरी बच्ची का आपने बताया कि वो एक ऐसे माहौल में गई जो जंगल का माहौल है या दरख्त है, कुछ चीज़ चढ़ गई, वो अपने आप में भी नहीं है। इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ है? अब देखने वाले बता रहे हैं कि इस पर ना मस्तान आशिक हो गए। मस्तान, अच्छा, मस्तान कोई जिन की किस्म है कोई। मस्तान से मुराद मुझे लगता है जो मस्त होते हैं, जिनको सही गलत में फर्क नहीं पता चलता। वो तो इंसानों में होते हैं शायद मस्ताने। इनमें भी हैं। अच्छा, किसी एक ने इनमें भी। बताया कि इन पर मस्तान का असर अच्छा। हो गया। अब वो मस्तान जिन्नात हैं, मस्तान आप समझ लें मौकेदार हैं, या उनमें ही कोई किस्म है जिसको मस्तान का नाम दे रहे हैं। अब 10 साल में आपको इतनी समझ तो आ जाती है कि ये सही है, ये गलत है। एक स्मेल होती है, एक तबीयत बर्दाश्त नहीं करती, आपसे उसको सूंघना बर्दाश्त नहीं हो सकता, उसको खा कैसे सकते हैं? ऐसे तो सुना ही नहीं जा रहा है। कोई खा सकेगा कोई इंसान? और एक अरसे से अब सोचे माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। कहती है भाई लोग तो बड़ी बातें करते हैं ना, यहाँ जमा करा दो, यहाँ जमा करा दो, ये कर दो, इससे अच्छा तो ये कर दो, वो कर आपको दो। क्या लगता है सर, ये मस्तान क्या चीज़ है? कभी सुनने में आया आपको ये? यार किसी ने बताया इसके बारे में? यार जैसे छलावे, हाँ। जिन्नात, शरीर बद, अच्छे नेक, इसी तरह मस्तान से मुराद अगर हम इंसानों में काउंट करें तो वो जिनके शायद समझ नहीं होती, मस्त होते हैं। लेकिन मस्तों में भी हमने देखा है कि ठीक है उनको अपने कपड़ों का होश में रहता है, किसी और ख्याल में, लेकिन वो भी अपनी नेगेटिविटी खाते नहीं हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, क्या वर्ड दे दिया इसको अपनी तरफ से दे दिया। एक साहब, एक देखने वाले ने ये कहा है, बाकी ज्यादातर ने ये कहा है आपने आने में बहुत देर कर दी। सब यही कहते हैं कि बहुत देर कर दी, अब क्यों आए हो, इतना टाइम गुजार दिया, इतना। शुरू में मतलब होता है ना, बच्चों को डांट दिया, मार दिया, ये क्या कर रही है, खबरदार। आप हर वक्त तो वॉशरूम नहीं जाएंगे उसके साथ, क्या पता वो छुप के करती रहती हो। और वो इतनी पक्की हो गई है कि अब वो ये रोके भी नहीं रुकती। कहते हैं उसको रोकते हैं, उससे अजीब सी जुनूनियत आ जाती है। फिर क्या मेडिकली ऐसा पॉसिबल है? 10 साल 8 महीने की जो बात की मैंने, यार बच्चे थोड़े से ना क्या कहते हैं कि मट्टी तो खाते हैं, असल में बच्चे फेस कलर मैं कह रहा हूँ 10 साल 8 महीने में जो उसके मखसूस दिन शुरू हो गए, क्या यार पॉसिबल है? आजकल एक वो चल रही है कि जैसे चिकन खाने से एक कोई उसमें जो केमिकल्स होते हैं बच्चों को अर्ली यंग कर रहे हैं, लेकिन 9 जो है वो बहुत अर्ली है। सॉरी 9 साल 10 9 महीने। साल तो बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली बच्चे ही होते हैं, उनको ना समझ है। इसका जो पीरियड का टाइम शुरू होना है ये इन्हीं दिनों की बात है। 9 साल 10 साल की एज का, वरना तो अब तक किसी ने बाबाओं ने ये कहा कि आप लेट हो गए, और किसी डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक, मेडिकली, दिमागी डॉक्टर, चेकअप, हर तरह से उन्होंने क्या कहा? कह रहे नॉर्मल है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आदत है। ऐसी कैसी आदत है यार? सज्जाद, एक बात तो खैर ये भी है कि बच्चों को अगर रोका टोका ना जाए ना, जैसे सख्त सजा मिल जाए गलत काम पे ना, तो वो बच्चे उसको इजी लेते हैं। सर आपने एक बात कही कि जानवर भी नहीं करते, ये बात तो खैर ठीक है। जानवर को तो नहीं समझाया जाता, सिखाया जाता। कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, जैसे बच्चों में अल्लाह पाक की एक शान है, छोटा बच्चा जहाँ क्रॉलिंग शुरू करे ना, आप कहीं रोशनी कर दें, वो रोशनी की तरफ जाएगा। क्यों? वो जहाँ से आया है ना उसने रोशनी देखी है, वहाँ सही, जहाँ से वो आया है ना उसने रोशनी देखी है, तभी वो रोशनी की तरफ जाएगा, जो बच्चों को कुछ पता नहीं है। और इसी तरह जानवर हैं, उन्हें कौन बताता है कि नेगेटिविटी इसको नहीं खाना, खाने को तो खा सकते हैं ना, लेकिन जानवर भी नहीं खाते। कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं इंसान के अंदर। एक स्मेल आपको दी हुई है जो आपकी नाक बर्दाश्त नहीं करेगी, वो आपको मुंह कैसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं उसका। असल फिर जो असरात इस पर जो हरकतें हो रही हैं, इतना जल्दी मेडिकली चेंज आना इसके अंदर, इसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, माँ वालिदैन की बात ना सुनना, तो बेइंतहा परेशान हो के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमें सुन के ऐसा हो रहा है, सोचे वालिदैन पे क्या गुजरती है, देखने वाले क्या कहते होंगे, मेहमान क्या कहते होंगे, आना जाना छोड़ दिया होगा लोगों ने, ये कहीं आ जा नहीं सकते, क्या करें, छोटी औलाद है, क्या करें उसको। जी
सुहेल भाई भी शौक में है, मैं भी शौक में हूँ। प्लीज देखें। इस वक्त मैं आपका खाना खाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बाहर आ जाएगा। इससे तो सुना नहीं जा रहा, ये लोग जब तो मैंने इस वक्त हम में से सभी साहिब औलाद बैठे हैं, सभी में माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। हमने देखा कि छोटी सी उम्र से बच्चा जो है ना वो अगर इस किस्म की कहीं पेशाब कहीं पखाना उसे आदत होती है तो वो छी करके और अपनी नाक पकड़ के बच्चे भागते हैं। मतलब यार नहीं है यार, मैं बहुत हैरान हूँ यार, ज़हनी तौर पर बिल्कुल अपसेट हो गया मुझे बात सुन। मैंने कुछ तो बोलो, तुम भी कुछ तो बताओ। नहीं स्कूल वगैरह जाती है बच्चे? नहीं, पहले जाती थी, शुरू में स्कूल जाती थी, आती थी स्कूल में, जब से उसने बताना नहीं छुपा दिया। उनको लगा स्कूल में वॉशरूम हो लेती होगी या घर पे कर लेती होगी, कभी इन्होंने इतना जोर नहीं दिया कि भाई जी वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ छोटा भाई वगैरह तस्वीरों में है, बहन है, भाई वो ठीक है। सच्चा एक बात आ रही है दिमाग में, ये हमारा जो मैदा है ना, ये अल्लाह ने बिल्टन दिया है। जो चीज़ आप खाओ ना, जैसे प्लास्टिक का कुछ हुआ उसका फील होता है, तो ये हजम कैसे कर लेते, इसकी हड्डियाँ नहीं लगती, इसके डाइजेस्टिव यार सिस्टम मुझे पता है क्या ख्याल आ रहा है, वोमिट नहीं करती है। मुझे ख्याल आ रहा है इसको देख कर ऐसा नहीं लगता, आप बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमने कुछ ऐसे केसेस देखे, एक बंदा इतना पानी पी रहा है जो मेडिकली साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो पानी कहाँ जा रहा है। एक बंदा कच्चा गोश्त खा रहा है और इतना खा रहा है कि एक पहलवान भी नहीं खा सकता, वो कहाँ जा रहा है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की हैं जो ज़ाहिरन उनके मुंह में जा रही होती हैं लेकिन पहुंच कहीं और रही थी। एक खातून आपने रिकॉर्ड की थी यही मलीर की, जिनका 30 साल से मसला था, अबू अनाकील जिनके ऊपर था, वो डेली 10 किलो कोला खाती थी। जी जी, डेली उनसे रोटी नहीं चबाई जाती थी, 10 किलो कोला खाती थी। मैं गवाऊँ, मैंने मिठाई खाते हुए देखा है आधा किलो, और जब वो वापस रिटर्न आते तो पूछते थे कि हमने कितनी मिठाई खाई है, तो हम बताते थे आप 8 पीस खा चुके हैं। अब ये सब चीज़ें जा तो उनके मुंह में नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है ऐसा वो खा सकें। इसी तरह अगर ये बच्ची है इतनी, इसकी सेहत भी कोई देखिए कांगड़ी सूखी करनी बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं कि सोनू भाई इसके ऊपर जो असरात हैं जिस मखलूक के, जिसको इस्लाम का नाम दे रहे हैं, कुछ और नाम दे रहे हैं, क्या उस तरह की चीज़ जा रही है। जो आपने कंडीशन बताई है मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, तो क्योंकि हमारी नज़र में बहुत सारे ऐसे केसेस गुजरे हैं, जैसे जिन्नातों की ग़िज़ा में भी ये चीज़ आती है, हाँ गोबर आता है, तो हो सकता है कोई ऐसा असर आता है कि उसको ज़बरदस्ती ये काम करने में बच्ची बोल सकती है, बच्ची ने आज तक बताया तो कुछ नज़र आता है उसे। मुझे कई ऐसे साइन मिले उनको कि जो हम तक पहुँचे हैं, वो हर जगह से हो लिया। आज बचपन से लेके आज 10 साल होने वाले हैं। अभी जो आपने बात की ना जन्नाती ग़िज़ा की, हड्डियाँ जन्नाती ग़िज़ा, और मैंने सुना है कि जन्नात के जो जानवर हैं ना उनकी ग़िज़ा है गोबर। मैंने जो सुना है कि जो गोबर है वो जन्नात के जो जानवर होते हैं उनकी ग़िज़ा है। तो क्या अल्लाह माफ़ करे कोई जानवर उनके ऊपर हावी हुआ है, वो तो कोई वाहिद एक ही जानवर है जो ये चीज़ खाता है। मुझे ये लगता है कि क्या कहते हैं कि जैसे भी आप बता रहे हो, मैं भी बता रहा हूँ कि ना कि जब ये चीज़ें खाती तो ये खुद नहीं होती है, कोई और होता है, उसको पता नहीं चलता ये क्या चीज़ खा रही है। हालांकि इनसे मेरी सरसरी बात हुई थी, इन्होंने ये लाइन सुनते ही मुझे कहा था कि चले फौरन। मैं कह रहा था कि यार वो उन्होंने हमें बुलाया नहीं है अभी, उन्होंने कहा चले फौरन। मैंने उनको इतना कहा क्या मैं आ सकता हूँ, उन्होंने कहा सर आँखों के। सही, अब हम अपने घर बुला लेंगे उनको, ये तो लियारी में रहते हैं, अच्छा खाना है वो मुरगी में रहती है। सही, उन्होंने कहा आप हमारे घर आ जाए, हम बच्चों को बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। तो जनाब ये तो बहुत शौकीन है, इसके बारे में यकीनन पता करूँगा मैं, तबसुस बढ़ गया कि और क्या चीज़ है। ऐसा मेरे पास 5वां केस है, ये वरीशस तो अकेली का केस नहीं है, ये 5वां केस है छोटे बच्चों का जो गलाजत खा रहे हैं, जो नेगेटिविटी खा रहे हैं, बहुत कम उम्र बच्चे। बाबा यार बस अल्लाह जल्द से सही करे बच्ची को। बहरहाल जी, तो उनसे मैंने कह दिया है, उन्होंने हमें बुला लिया है, ज़िंदगी रही, जल्द कोशिश करेंगे इनके घर जाने की। और जब सुन के हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोचे जिन पर गुजर रही होगी, कहता हूँ ना मैं, जिस पर गुजरती है वही बेहतर जाता है। ये सब आपके सामने है, चला दीजिए इजाज़त। एक बात बस जाते जाते कहूँगा, आप भी ये बात कहते हो, कई जगह मैंने सुनी है कि बचपन में जिसको सिखा दिया सो सिखा दिया, वो ज़िंदगी भर नहीं सीखता जो बचपन में नहीं सीखा। सही,
اس لیے کہتے ہیں تربیت آسان نہیں ہوتی. ماں باپ بننا آسان ہے, والدین بننا بڑا مشکل ہے. اور کچھ چیزیں فوراً وقت کر لینی چاہیے, دیر سے نہیں کرنی چاہیے. جتنا ڈیلے کرتے ہیں اتنا مسئلہ خراب ہوتا ہے. بہرحال بالکل جی, زندگی رہے انشاءاللہ پہنچیں گے, ملیں گے, اور مزید جو باتیں ہمیں نہیں پتہ وہ پوچھتے ہیں. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہے انشاءاللہ.